Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in current electricity for BSc Part 2 Physics courses, which is series LCR resonant circuit or acceptor circuit, in which we will derive the expressions for impedance and resonant angular frequency of the series LCR circuit. We will also define series LCR circuit, series LCR resonant circuit and electrical resonance. We will also discuss its phasor diagram, that is phasor diagram of the series LCR AC circuit. But first of all, we have to define LCR series AC circuit. When three components, an inductor of inductance L, a resistor of resistance R, capital R, and a capacitor of capacitance C are joined in series connection, and this combination, that is the entire combination, is connected to an AC source of EMF capital E is equal to E naught a small e to the power j omega t or E naught sin omega t. It is called a series LCR circuit. जब हम three components, an inductor of inductance capital L, a resistor of resistance capital R and a capacitor of capacitance C को सीरीज कनेक्शन में इंड टू इंड कनेक्ट कर देते हैं तथा इस इंटायर कॉम्बिनेशन को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसे सीरीज एलसीआर सर्किट कहा जाता है. जैसे ही इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, दोनों इंड्स के बीच में, कॉम्बिनेशन के दोनों इंड्स के बीच में, जिसके कारण एक करंट आई इस सर्किट में, एलसीआर सीरीज सर्किट में करंट आई फ्लो करता है. जिसे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, इस करंट को, आई को. इसके कारण, that is due to current flowing through the series LCR circuit, potential drop or potential difference across the inductor, which is VL, potential difference across the resistor of resistance capital R, that is VR, and potential difference across the capacitor, which is VC, are developed, which can be obtained from Ohm's law, that is VL, that is PD across the inductor is I into R. R के जगह पर इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, जिसे एल ओमेगा से डिनोट करते हैं. लेकिन यहाँ ऑपरेटर जे का यूज किया गया है, तो ऑपरेटर जे का यूज कर इसे जे ओमेगा एल. इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल XL, which is omega L. Using operator J, it is J into omega L. So VL is equal to, that is potential difference across the inductor of inductance capital L is VL is equal to I into J omega L. Now resistance, potential difference across the resistor is VR equals to I into R. Using Ohm's law, we know very well. रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VR इक्वल टू I इंटू R, एंड कैपेसिटर C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC इक्वल्स टू होगा I इंटू माइनस J अपॉन C ओमेगा. 1 by C omega is the capacitive reactance, which is denoted by the symbol XC. We know very well. So using operator J, it is VC equals to potential difference across the capacitor equals to I multiplied by minus J into C omega.
and total potential difference of the series connection of the inductor L, resistor of resistance capital R and capacitor of capacitance is VL, that is VR plus VL plus VC, and this will be equal to the applied EMF of the AC source, that is capital E equals to VR plus VL plus VC, and VR potential difference across the resistor is V is equal to IR, capital IR plus VL. VL is potential difference across the inductor is I into j omega L, that is I into j omega L plus VC. VC is I minus j by c omega, so it is plus minus j multiplied by I upon c omega. Now I is common in all three terms in RHS में चूंकि टोटल EMF AC सोर्स का कैपिटल E इक्वल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर विच इज VL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर VR एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर VC. तीनों का सम VR प्लस VL प्लस VC का सम अप्लाइड EMF AC सोर्स का कैपिटल E के इक्वल होगा, जिसे हमने सम किया है कैपिटल E इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC. चूंकि जैसे ही हम LCR के सीरीज कनेक्शन को, तीनों कंपोनेंट्स L, C एंड R के सीरीज कनेक्शन को AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे, एक करंट I इस सर्किट में फ्लो करेगा, जिसके कारण ऑल थ्री कंपोनेंट्स इंडक्टर, रेजिस्टर तथा कैपेसिटेंस C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, प्रोड्यूस होगा, और ओम्स लॉ के हेल्प से हमने VL इजकल टू I इंटू जे ओमेगा L, VR इजकल टू IR एंड VC इजकल टू I इंटू माइनस जे बाई सी ओमेगा, इसको हमने ऑब्टेन किया ओम्स लॉ से. और VR प्लस VL प्लस VC इजकल टू, तीनों का सम हो जाएगा, ऑल थ्री पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम अप्लाइड EMF के इक्वल होगा, जिसे हमने लिखा कैपिटल इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC, और कैपिटल E इक्वल टू टोटल दैट इज EMF ऑफ द AC सोर्स, अप्लाइड EMF, अप्लाइड AC सोर्स का EMF है कैपिटल E इक्वल टू IR प्लस I j ओमेगा L माइनस j इंटू I बाई सी ओमेगा, एंड इट इज I is common in all three terms, so I is taken out of the bracket, so I under bracket capital R plus omega L minus 1 by c omega इक्वल टू I. और इस इक्वेशन से हमें ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कैपिटल E इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड this is equation number 1, capital E equal to VR plus VL plus VC, and capital E equal to I under bracket capital R plus omega L minus 1 by omega C. This is equation number 2. और इसके हेल्प से हम लोगों को I का वैल्यू मिल जाएगा, करंट I का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इम्पिडेंस, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, इम्पिडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट. Impedance is a total resistance of any circuit, LR circuit, CR circuit, and in this case LCR circuit. तो impedance का एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ऑब्टेन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अब डिफाइन कर लिया जाए, हम लोग डिफाइन कर लें कि LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है, और क्यों LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है. In LCR series circuit, at a particular angular frequency, which is called resonant angular frequency, say it is omega 0 or omega small r, symbol resonant angular frequency का, the resultant impedance
of LCR series circuit is minimum, that is Z is equal to R. इम्पिडेंस, रिजल्टेंट इम्पिडेंस LCR सीरीज सर्किट में एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसका सिंबल ओमेगा नॉट और ओमेगा स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, सिंबल इसका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो एक पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर सीरीज LCR सर्किट का रिजल्टेंट इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, जो कि केवल कैपिटल आर रजिस्टर का रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। क्योंकि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल एंड कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 1 बाई दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई सी ओमेगा दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों का जो नेट डिफरेंस है दैट इज ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर केवल एक ही टर्म रेजिस्टेंस का टर्म ही बचता है इंपीडेंस के एक्सप्रेशन में, जिसे हम लोग ऑब्टेन भी करेंगे। तो दैट इज जेड इजकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर, दैट इज जेड इजकल टू कैपिटल आर। तो इसलिए यह इंपीडेंस मिनिमम होगा LCR सीरीज सर्किट का, लेकिन यह होगा केवल एक फ्रीक्वेंसी, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नाम है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज डिनोटेड बाई द सिंबल ओमेगा 0 हेयर। So the series LCR circuit allows the maximum current to flow through it when the resultant impedance of the series LCR circuit is minimum, that is when Z is equal to capital R at the particular angular frequency which is called resonant angular frequency। मतलब resonant angular frequency ओमेगा 0 पर LCR सीरीज सर्किट मैक्सिमम करंट को फ्लो करता है अपने से पास होने के लिए, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। जब LCR सीरीज सर्किट में एट द पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब एक पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 पर सीरीज LCR सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, जो कि Z इक्वल टू कैपिटल R के इक्वल। तो उस सिचुएशन में जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो LCR सर्किट उस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट को अपने से फ्लो करने का अलाउ करता है, और इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहा जाता है। और LCR सीरीज सर्किट को इस सिचुएशन में सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस when the series LCR circuit allows maximum current to flow through it at the resonant angular frequency. It is called this phenomenon is called electrical resonance, and the LCR series circuit is called LCR series resonant circuit. Thus we have defined LCR series resonance circuit and also electrical resonance. Now in LHS of equation 2, EMF of the AC source capital E can be expressed as capital E equals to E naught into e to the power j omega t, or capital E equals to E naught sin omega t. So we can write equation 2, that is in place of capital A EMF of the AC source, we can write E naught e to the power j omega t, and RHS is capital I under bracket capital R plus omega L minus 1 by capital R plus J is also common, J under bracket omega L minus 1 by C omega. So we have equation 2 can be expressed as capital E equals to E naught e to the power j omega t equals to capital I capital R plus operator J omega L
minus 1 by C omega. Therefore, current, AC current passing through the series LCR circuit, we can obtain capital I equals to E naught e to the power j omega t upon under bracket capital R, that is resistance, plus operator j. Now again bracket omega L, अंडर ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा. ऑपरेटर जे को भी कॉमन कर लिया गया, चूँकि बोथ टर्म्स जे ओमेगा एल एंड माइनस जे बाई सी ओमेगा दोनों टर्म्स में ऑपरेटर जे प्रेजेंट है. तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट पासिंग थ्रो और फ्लोइंग थ्रो और फ्लोज थ्रो द सीरीज LCR सर्किट. कैपिटल आई इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी अपॉन अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस ऑपरेटर जे अंडर ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा. एंड इट इज इक्वेशन नंबर 3. इट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ इन RHS 1 बाई कैपिटल आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, नाउ वी हैव 1 अपॉन कैपिटल आर प्लस जे ओमेगा एल minus 1 by C omega can be expressed as 1 upon capital R plus J omega L minus 1 by C omega multiplied by its multiplied by its complex conjugate, that is R minus J under bracket omega L minus omega 1 by C omega in the numerator and denominator. So 1 upon R plus capital R plus J omega L minus 1 by C omega equals to R capital R minus J omega L minus 1 by C omega upon capital R plus J under bracket omega L minus 1 by C omega multiplied by its conjugate, which is R capital R minus capital R minus J omega L minus 1 by C omega in the numerator and denominator. न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में हमने RHS में मल्टीप्लाई किया R प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का कंजुगेट से, that is R minus j omega L minus 1 by C omega. Now we have this. Now we have in RHS equals to capital R minus j omega L minus 1 by C omega upon in the denominator a plus b into a minus b का फॉर्म, अलजेब्रा का फार्मूला के फॉर्म में है डिनोमिनेटर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट जे इंटू जे स्क्वायर इज माइनस 1. सो डिनोमिनेटर बिकम्स माइनस माइनस प्लस जे स्क्वायर इजकल टू माइनस 1. ऑपरेटर जे का स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस है अलजेब्रा का फार्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो माइनस माइनस प्लस, सो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर. एंड LHS इज 1 अपॉन कैपिटल आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा. नाउ वी हैव in RHS of this equation, say it is equation number 4. RHS of equation 4 can be expressed as R upon R square plus omega L minus 1 by C omega square minus J omega L minus 1 by C omega upon R square plus omega L minus 1 by C omega का square. तो we can write this as 1 upon capital R plus J omega L
minus 1 by C omega in LHS, and in RHS it is capital R upon root under R square plus omega L minus 1 by C omega का होल स्क्वायर माइनस, अब R अपॉन रूट R अपॉन अंडर ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर और माइनस जे ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा सी अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस जे ओमेगा सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब इसे दो टर्म में RHS को एक्सप्रेस किया गया, जे ओमेगा एल आर माइनस जे सेकेंड टर्म में माइनस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी और सी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन, से इट इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ लेट अस पुट tan theta is equal to omega L minus 1 by omega C, sorry, tan theta is equal to omega L minus 1 by C omega or omega C upon R. Then we will obtain the value of sin theta and cos theta by with the help of impedance triangle. impedance triangle की हेल्प से हम impedance triangle की हेल्प से हम ये cos theta and sin theta का वैल्यू भी obtain कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में हमें वैल्यू पुट करना होगा 1 बाई आर प्लस जे इंटू ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का, जिसे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसे इक्वेशन 3 में पुट करना होगा। तो नाउ लेट अस पुट omega L minus 1 by C omega upon R equals to tan theta. Then say it is equation number 6. Then cos theta equals to capital R upon root under R square plus ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा और ओमेगा सी का होल स्क्वायर, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर, and the values of cos theta and sin theta we have obtained by using the impedance triangle. एक impedance triangle यहाँ ड्रॉन किया गया, जिसमें हमने सपोज किया था tan थीटा, ये एंगल थीटा है, हाइपोटेनस बेस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट एंगल इज हॉरिजॉन्टल से थीटा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू हमने सपोज किया ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा अपॉन आर, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा एंड बेस इज कैपिटल आर, सो हाइपोटेनस इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर, एंड this will give the impedance, that is total resistance of LC series circuit, that is root under R square plus omega L minus 1 by C omega square is capital Z, which gives the total resistance of the series LCR AC circuit. So it is an impedance triangle with the help of which we have obtained cos theta, that is cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is capital R upon root under, hypotenuse is root under R square plus omega L minus 1 by C omega square, and sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so it is omega L minus 1 by C omega upon root under R square plus omega L minus 1 by R square plus
अंडर ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर. So we have obtained already, and this is equation number 7. This is equation number 7. So equation 5, using 6 and 7 in equation 5, RHS of equation 5 becomes, now we can write equation 5, we can express equation 5 as 1 upon R capital R plus J under bracket omega L minus 1 by C omega equals to R upon root under R square plus अंडर ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. फर्स्ट टर्म है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, हमने ऑब्टेन किया है कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर कैपिटल आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा अंडर ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर. सो इट इज फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म ऑफ आर एच एस, फर्स्ट टर्म इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5 इज कॉस थीटा आर कैपिटल आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हमने ये फर्स्ट टर्म था, अब इसे दैट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. रूट अंडर हमने लिखा है तो 1 बाई, फर्स्ट टर्म को लिखने के लिए 1 अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे. तो आरएचएस में चूंकि फर्स्ट टर्म में कितना है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर है, तो उसको फिर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर लिखा जा सकता है. और कॉमन लिया है हमने रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन 5 का जो फर्स्ट टर्म है आर कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. और सेकेंड टर्म में भी आरएचएस के सेकेंड टर्म में भी डिनोमिनेटर में सेम टर्म है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. तो इक्वेशन 5 में हमने रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, जिससे कि हमको कॉस थीटा का टर्म आ जाएगा. फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिखेंगे अब, कॉस थीटा माइनस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा इंटू साइन थीटा. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा अब आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. तो अब हम लिख सकते हैं उसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर. तो ये साइन थीटा के इक्वल है. तो सेकेंड टर्म में इक्वेशन 5 का प्रेजेंट है ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर. तो उसके जगह पर, और चूंकि हमने रूट कॉमन ले ही लिया है, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेकेंड टर्म में भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा. तो उसकी जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं. तो ये हो गया माइनस जे इंटू, माइनस जे पहले है इसमें सेकेंड टर्म में, जे इंटू साइन थीटा, जे इंटू साइन थीटा अंडर ब्रैकेट. And now we can write the above equation as 1 by 1 upon r, the value of 1 upon r plus j under bracket omega l minus 1 by c omega equals to 1 upon root under capital R square plus omega l minus 1 by c omega का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा इजकल टू ई टू द पावर माइनस जे थीटा. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8. नाउ using this equation in equation 3 we can obtain the value of I, that is I is equal to E naught upon E naught into e to the power j omega t upon r plus j omega l minus c omega
सी ओमेगा, तो इसका वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, तो केवल हम इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई कैपिटल आई इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जे ओमेगा टी, और 1/r प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा एल का वैल्यू इतना आ गया, 1/√r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी। सो यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 8 in equation number 3. So equation 3 becomes, using it in equation 3 becomes LHS is in equation 3 is I equals to E naught multiplied by e to the power j omega t multiplied by, अब नेक्स्ट टर्म था उसमें 1 अपॉन कैपिटल आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा, जिसका वैल्यू हमने ऑब्टेन किया 1/√r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस जे थीटा। सो इट इज नाउ 1/√r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर एंड e टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस j इंटू थीटा। अब हमने वैल्यू ऑब्टेन कर लिया, मतलब इक्वेशन 3 में 1/r प्लस जे अंडर ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन करंट का कैपिटल आई इक्वल टू E0 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर j ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई 1/√r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जे थीटा। अब यहाँ ई टू द पावर न्यूमरेटर में जे ओमेगा टी और वहाँ ई टू द पावर माइनस जे थीटा, दैट इज जे कॉमन हो जाएगा, तो ई टू द पावर जे माइनस, नाउ इन द नेक्स्ट टर्म वी कैन राइट इट एज आई इक्वल्स टू ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा अपॉन रूट अंडर ई नॉट अपॉन रूट अंडर कर दिया जाए, ई नॉट अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर जे अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस थीटा। नाउ आई E0 अपॉन ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF of the AC source. So E naught upon root under r square plus omega L under bracket omega L minus 1/c omega whole square is the total resistance of LCR circuit, and it is called impedance of LCR series circuit. So this equation now can be written as I naught multiplied by e to the power j operator under bracket omega t minus theta, and this is the expression for AC current which flows through the series LCR circuit, and in the denominator, the term in the denominator root under r square plus omega L minus 1/c omega chi square is called impedance, that is total resistance of LCR series circuit. So it is the expression for impedance also. So root under r square plus omega L minus 1/c omega square equals to Z, and it is impedance of LCR circuit, series LCR circuit. Impedance, that is total resistance of the series LCR AC circuit. Let it is equation number 10, which is the expression for impedance of the series LCR circuit. Now we have to obtain the expression for resonant angular frequency, and we will obtain the condition of resonance also. So at resonance, the current LCR series circuit allows maximum current to flow through it at a particular frequency, which is called resonant frequency, and corresponding angular frequency is called resonant angular frequency. So in resonance we have, that is maximum current flows through the series LCR circuit
in resonance in the series LCR circuit, we have resistance is minimum, Z is equal to R, that is Z is equal to R, impedance of series LCR circuit is minimum equal to resistance only. When it will possible, when omega L equals to 1 by C omega, and this is the condition for resonance. It is the condition for resonance, that is inductive reactance equals to capacitive reactance. Then the term omega L minus 1 by C omega is equal to 0. So impedance, so current in the circuit will maximum, which will given by I naught is equal to E naught upon Z. E naught upon Z, Z is equal to R. E naught upon R. This is the maximum current. This is the condition of resonance. Condition of resonance in LCR series circuit, that is omega L minus 1. Omega L is equal to 1 by C omega, or we can write omega, that is omega square is equal to 1 by LC. और इस ओमेगा को ही एक पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. तो therefore omega, in place of omega we can write omega naught square, omega naught square is equal to 1 by LC. Therefore omega naught equals to 1 by root under LC, and this is the expression for resonant angular frequency in LCR series of series LCR circuit, resonant angular frequency. And we can obtain angular frequency, resonant frequency also of the series LCR resonant circuit as by dividing omega 0 by 2 pi. So it is resonant angular frequency omega naught is equal to 1 by root under LC, and resonant frequency of LCR series resonant circuit is resonant frequency is equal to N0 equals to omega naught upon 2 pi, that is 1 by 2 pi multiplied by root under LC, and this is the expression for resonant frequency of the series LCR resonant circuit. Now we can sketch the phasor diagram of the series LCR AC circuit, which we can illustrate in figure 2. Suppose x-axis, xy plane, x-axis is the real axis and y-axis is the imaginary axis, xy. Suppose resistance current is represented along current I is represented along OA, along which potential difference across the resistor is also along OA, because we know that in series in a resistive AC circuit, potential difference and current both are in same phase. इसलिए चूंकि रेजिस्टिव सर्किट में हम जानते हैं, रेजिस्टिव एसी सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम फेज में होता है, इसलिए ओए के लॉन्ग हमने रिप्रेजेंट किया करंट को, एसी सर्किट में करंट को, और इसका मैग्नीट्यूड जो है करंट का, इसका पीक वैल्यू माने इसका जो इंटायर लेंथ है उससे हम करंट का पीक वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आई की जगह आई नॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो उसी के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस भी ओए के लॉन्ग ही है, जो कि एक्स एक्सिस से इनिशियल एंगल कितना पर है, थीटा, रोटेशन कितना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओमेगा टी एंगल पर है एक्स एक्सिस से. और सपोज करते हैं कि ओमेगा एल भी ये ओमेगा एल है, जो कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज वी
विच इज इक्वल टू आई इंटू एल ओमेगा। तो वी एल हो जाएगा आई नॉट इंटू एल ओमेगा, आई नॉट इंटू एल ओमेगा, और यह वी आर से 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में जिसमें इंडक्टर होता है तो उसमें वोल्टेज करंट से, क्योंकि करंट को हमने ओ ए सी अलोंग रिप्रेजेंट किया है, जिसके अलोंग वी आर भी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो आप 90 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टिव एसी सर्किट में करंट से, तो इसलिए 90 डिग्री पर होगा करंट के डायरेक्शन से, ओ ए से। और सपोज किया जाए इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर VC को रिप्रेजेंट किया गया है, और वह करंट से, VC करंट से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर करंट से π/2 एंगल से क्या होता है, पीछे होता है, लैग बिहाइंड होता है। तो यहाँ पर भी करंट के साथ, करंट और आई नॉट और VC के बीच का एंगल कितना होगा, VC यहाँ पर पीछे होगा, लैग बिहाइंड टू द करंट बाई एंगल π/2। तो यहाँ भी π/2 एंगल से VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, जस्ट अपोजिट टू VL, और यह लैग बिहाइंड, VC लैग बिहाइंड द करंट in the circuit by through phase angle π/2, we know very well in the capacitive AC circuit. And if VL is greater than VC is equal to, we can represent it is by I naught into 1 by C omega. In operator form it is I naught into minus J by C omega. So it is I naught into 1 by C omega. If VL is greater than VC, then resultant of VL minus VC, suppose VL is represented along B, OB, and it is VC is represented by VC along OC. So if VL is greater than VC, then resultant VL minus VC is along the OB, and it is represented by OD. VL minus VC is represented by VL minus VC is represented by OD. Now the resultant of VL minus VC and VR is represented by a, now complete a rectangle, and the diagonal of the rectangle passing through point O will represent the resultant value of resultant voltage, which is equal to E naught मैक्सिमम वोल्टेज EMF का, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, और इससे सपोज किया जाए एफ से, OF इज द रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC एंड VR इफ VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VC VL से बड़ा होगा तो ये डायग्राम VC माइनस VL जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह एलोंग OC होता। तो दिस रिप्रेजेंट्स द, दैट इज OF रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VL माइनस VC and VR, which is represented along OA, and it is, suppose it is E naught, the length of this the length of OF represents the peak value of EMF, that is E naught, and the phase angle is given by phase angle between phase angle theta is between current I naught and E0 is theta. In equation 9 we have obtained that current lags by angle theta to the applied voltage or EMF in LCR series circuit. LCR series circuit में हमने इक्वेशन 9 में देखा था जो करंट का एक्सप्रेशन था फाइनल, तो उसमें टर्म था लास्ट में e⁻j ω t माइनस थीटा, मतलब करंट वोल्टेज से ई नॉट से, यहाँ भी क्लियर है फेजर डायग्राम से भी कि ई नॉट करंट से, करंट का जो आई नॉट का जो डायरेक्शन है OA के लॉन्ग है, इधर VR है जिसके लॉन्ग VR है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो पीक वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज है VL माइनस VC और VR का, या कहें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, तो वह लीड कर रहा है करंट आई नॉट से, पीक वैल्यू ऑफ करंट से, कितने एंगल से, फेज एंगल थीटा से। यहाँ भी क्लियर है कि करंट यहाँ पीछे है, लैग बिहाइंड द अप्लाइड EMF, peak value of EMF by an angle theta. This theta is also represented here, and this represents the phasor diagram. This represents the phasor diagram of
LCR series AC circuit. This is figure 2. Now you can sketch this diagram, that is phasor diagram of series of the series LCR circuit, series LCR AC circuit. In last we will discuss why LCR series resonance circuit is called acceptor circuit. We know that at resonance the resultant impedance or resistance of LCR series circuit is minimum. So acceptor circuit, LCR series resonance circuit is also called acceptor circuit because at resonance, write down, at resonance the series LCR AC circuit accept or allow that current to flow through the circuit, that is LCR circuit, except that current out of a number of current. बहुत से करंट्स में से केवल एक करंट को अलाउ करेगा रेजोनेंस के केस में एट ए पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 पर LCR सीरीज सर्किट बहुत सारे करंट में से आउट ऑफ नंबर ऑफ करंट्स में से ओनली उस करंट को एक्सेप्ट करेगा, अलाउ कराएगा सर्किट से पास होने में, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, दैट इज ओमेगा 0 के इक्वल हो. सो LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज also called acceptor circuit because it can accept only that current out of a number of currents for which angular frequency is equal to the resonant angular frequency at resonance. So at resonance the series LCR AC circuit accept that current to pass through the LCR circuit out of a number of currents whose frequency, that is frequency of that particular current, is equal to the resonant frequency N0 और resonant angular frequency ओमेगा 0. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी N0 और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0. So LCR series resonance circuit is also called acceptor circuit. Hence that is series LCR resonance circuit. It is also called an acceptor circuit, ACCEPTOR, acceptor circuit. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. अब यह वीडियो पूरा होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक LCR पैरेलल AC सर्किट को डिस्कस करेंगे, जो कि वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस वीडियो में तो हम लोगों ने सीरीज LCR AC सर्किट को डिस्कस किया कंप्लीटली. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस.